First of all, thank you very much giving this opportunity and डॉक्टर भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले इतने सालों से वो लोग हेल्थ केयर के ऊपर ये अवार्ड्स और ये इवेंट्स करते आए हैं। और ख़ासकर अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें हेल्थ में, तो आयुर्वेदा तो अपने आप में उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। और ये टॉपिक जो चुना है, रोल ऑफ आयुर्वेदा इन सस्टेनेबिलिटी, इट्स रियली ग्रेट। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा राम जी से। राम जी, अगर हम आयुर्वेदा सस्टेनेबिलिटी की बात करें, हाउ डज आयुर्वेदा कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल हेल्थ केयर एंड व्हाट मेक इट मोर इको फ्रेंडली अप्रोच कंपेयर टू मॉडर्न? देखिए, so how I see, healthcare is not in isolation. I always see this is a part of process, and integrative medicine is what people talk about, world talk about, and people should get what brings value for them versus what is, what can work in isolation. That's part one. Second thing is that when you say sustainability and how it is contributing, there are two factors to it. When you look at Ayurveda, there are communities that are dependent on that. अगर आप देखते हैं तो farmers हैं. One side you have got your indigenous people in deep woods. What they do? They go and collect herbs and they sell it to industry. Then you have got the farmers farming something and giving it back to the industry. Now take an example. If you have got a tree, is not going to do anything for you, what would you do? You will cut and burn it. Simple. True. But if it is going to give at least once in a year something to live off, you are going to preserve that. And that to some extent has also been able to preserve our jungles, deep woods, that is giving enormous resources for our day-to-day lives, including raw material for Ayurveda. So, overall basis, Ayurveda is sustainable. But overusage, is going to be a challenge. But what we see is that there are efforts happening. There are situations which is leading, our category and our industry to better understand the needs of our society, and at the same time balancing it with the environmental and climate need. Climate to some extent taken care of, because of course if you have jungle, if you have got deep woods, it will be taken care of. Beyond that, how do I see is, economic impact is also enormous. When we talk about economic impact, when, for example, if as a consumer you are consuming a product, hoga kya? Then you are paying a price for it. But the price gets distributed. It goes to a doctor, it goes to a distributor, it goes to farmer at the end also, who is also producing raw material. So there are multiple ways, and it is also linked to the overall supply chain of healthcare. This has particularly led Ayurveda to become 20% of overall healthcare as we speak today, from 5% of healthcare in 2005. Yeah, true. बहुत ही बढ़िया राम जी आपने एक्सप्लेन किया। सो मैं डॉक्टर बलदीप से भी क्वेश्चन करूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आयुर्वेदा हमारे जीवन को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी नेचर को प्रिजर्व कर सकता है? एवरीवन जो बेसिक, अगर हम अपने घर से भी बात करें, किस तरीके से आयुर्वेद इसको सिंपल वे में कैसे आप समझाएंगे हमें? जी, ये बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन जो आयुर्वेद को लेके पूछा गया है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के बारे में एक बहुत ही कॉमन जो श्लोक है वो हम सबको पता है। मेरे ख्याल से जो आयुर्वेद से बिलोंग नहीं करते उनको भी पता है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजनम रहता है वो रहता है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, मीन्स कि प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करना। सो जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि बीमार ना होने के ऊपर, उसमें चाहे आपका आयुर्वेद आपकी हेल्प करता है फूड को लेके, या आपके लाइफस्टाइल को लेके, या आपकी मेंटल हेल्थ को लेके, या आपकी सोशल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ को लेके, तो उसमें आप जब बीमार नहीं होंगे तो आपका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है आपकी पर्सनल जेब के ऊपर और कंट्री के ऊपर भी, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, आयुर्वेद से अगर हम बीमार नहीं होते तो जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फार्मा इंडस्ट्री में जो मेडिसिन्स बनती हैं या अदर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका भी यूजेज जो है बहुत कम होता है।
थर्ड थिंग इज जो वेस्ट या बाय प्रोडक्ट इन चीज़ों से निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट करता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आयुर्वेद इज़ ए इको फ्रेंडली ग्रीन इंडस्ट्री और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में, इकोनॉमिक हेल्थ को सस्टेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो ऑब्वियस ये हमारी जो पर्सनल हेल्थ है या हमारी खुद की इकोनॉमिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। प्लस आयुर्वेद जो है वो एक नेचुरल इंडस्ट्री है, या आप कह लो इन्वायरमेंट के साथ मिलके काम करती है, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करती है। तो हमारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी जो डिमांड्स होती हैं वो भी, उसका भी बर्डन हमारे ऊपर रिड्यूस होता है। तो एक सस्टेनेबल हेल्थ को भी मेंटेन करता है आयुर्वेद, और इकोनॉमिकल जो कंट्री के ऊपर जो बर्डन होता है या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो बर्डन आता है उसमें भी आयुर्वेद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थैंक यू डॉक्टर बलदीप। सो जैसे डॉक्टर बलदीप ने कहा कि आयुर्वेद तो अक्सर हम लोग अपने इवेंट्स में या अपने जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं उसमें हम चर्चा भी करते हैं कि आयुर्वेद तो ये कह लो कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे किचन से शुरू किया हुआ है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे अगर हम एंसेस्ट्रल बैक जाएं, हमारे दादाजी परदादाजी, या अगर हम अपनी किचन की बात करें तो वो जो स्पाइसेस हैं, वो हल्दी, मिर्च, मसाले, जीरा, अजवाइन, दीज आर द हर्ब जो कि आज इंडियन किचन में मिलेंगे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएं, उसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूरोपियन कंट्री हो, तो वहाँ पे किसी के भी घर में आपको फुल किचन नहीं मिलती। एक टेम्परेरी किचन मिलेगी जहाँ पे माइक्रोवेव होगा, डिश वॉशर होगा या छोटा सा कुकटॉप होगा, लेकिन फुल किचन नहीं मिलेगी। और ये आप सभी ने कोविड के दौरान देखा भी है कि हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी कैजुअलिटी कम हुई। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर से, अपने किचन से इन सब बेसिक्स जो हमारे वो स्पाइसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जब भी हम, जैसे राम जी बैठे हैं, हम लोग जब इंडस्ट्री में अपने गवर्नमेंट जो हमारे उनसे मिलते हैं पॉलिसी मेकर्स को, तो वहाँ पे भी हम लोग यही बात करते हैं कि क्यों ना आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। हम क्यों बार बार बात करते हैं कि भाई वो आयुर्वेदा वाले, हम एलोपैथी, होम्योपैथी, इट्स टाइम टू इंटीग्रेट एक्चुअली। सो पनिशेरी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप किस तरीके से देखती हैं इसको, रोल ऑफ आयुर्वेदा का सस्टेनेबिलिटी हेल्थ केयर में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Thank you for this forum to express my views about Ayurveda. So, as it is said, Purusha Loka Samsayat, means nature and people are together. Whatever is there in the entirety is there in us. That's what Ayurveda believes. So, you see fire, water, air outside, but they are there inside. So, what more I can say about sustainability? So, बिल्कुल। we are already sustainable in the form of nature and we as a wholesome entity. And when we recognize that, we will always look at holistic health approach. And when I talk about holistic health approach, it is about the way you live, the way you wake up, the way you keep your circadian rhythm intact, the way you sleep. Everything matters when it comes to sustainability. It is not only about getting sick, going into a hospital. It is about being healthy. Being healthy. And most of us know the definition of health by not being sick. But health has a different definition of being more healthy. You know, your mental well-being, everything comes into a play when it comes to आरोग्यम. And आयुर्वेदा से अच्छा कौन बोलेगा अपने हेल्थ के बारे में? बिल्कुल। तो सस्टेनेबिलिटी की तो मिसाल है आयुर्वेदा। हमको डिफरेंट डेफिनेशन से बोलेंगे, यही बोलना पड़ेगा कि हम नेचर में हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर and nature is part of us. We just have to recognize that the day, and thanks to COVID, जैसा इन्होंने बोला किचन में आयुर्वेदा है बोल के हम सबको मालूम हुआ, बहुत लोगों को मालूम हुआ कि किचन में ही आयुर्वेदा है बोल के। अब आयुर्वेदा 3000 साल पुराना है बोल के हम बोलना पड़ेगा हम सबको कि मतलब हमें प्रमाण देना पड़ता है अभी भी कि आयुर्वेदा काम करता है नहीं करता। नहीं, ये तो अपना इंडियन है, वी हैव टू वाउच फॉर दिस, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच पनिशेरी जी। सो जैसे इन्होंने कहा अभी कि इसका, ये तो हमारी नेचर को
नेचर को अगर हम कुछ भी चीज़ लेते हैं तो वो बैक उसको मिलता ही मिलता है। और आयुर्वेदा साइंस तो एक 5000 ईयर ओल्ड, मतलब हम कहते हैं कि 5000 ईयर ओल्ड होगी, बट जब से इस सृष्टि की रचना हुई ये माना जाता है कि तब से आयुर्वेद है। और हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ, मेरे पास कितने बच्चे पीछे बैठे हैं, अगर हम किसी को भी एक खड़ा होकर पूछूंगा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, कोई बता पाएगा मुझे प्लीज? क्योंकि देखिए ये एक सेशन है, हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि एक ऐसी डिस्कशन करना जिसका कुछ एडवांटेज ये जितने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा के, उनसे कुछ मिल पाए। मैं अगर किसी भी एक बच्चे को खड़ा करूं, जैसे एक सामने बैठी हैं ये, आप प्लीज बता पाएंगे कि व्हाट इज हेल्थ एक्चुअली? आप प्लीज, या कोई भी हाथ खड़ा करके बता सकता है कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? सो अभी कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है बताने में कि व्हाट इज हेल्थ, और हम लाखों करोड़ों रुपया अपना, ये कह लो कि पूरी जिंदगी में जितना पैसा हम कमाते हैं ना, उसका 1/3 हम हेल्थ पे खर्च करते हैं। पॉलिसीज मेकर, गवर्नमेंट बहुत सा बजट खर्च करती है दवाइयों पे, रिसर्च पे, लेकिन जो ये अभी टॉपिक चुना कि हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प इन सस्टेनेबिलिटी हेल्थ केयर, भाई अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझ लें आयुर्वेद का, बेसिक कंसेप्ट मतलब, ये मैं क्वेश्चन डॉक्टर बलदीप से पूछूंगा कि मैम कैन यू टेल मी कि कैसे, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड हाउ यू कैन अटैच इट सस्टेनेबिलिटी? जो आप हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द फिजिकल हेल्थ। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हेल्थ के और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ द वेलबींग अबाउट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आपके जब ये सारे पैरामीटर्स सही से होते हैं तब हम कहते हैं हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है। आप फिजिकली वेलबींग हैं लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू आर नॉट हेल्दी, या आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी, या आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आयुर्वेद के अंदर जब हम ट्रीटमेंट या हम हेल्थ को या हम डेफिनेशन करते हैं तो सबसे पहले आहार, विहार और निद्रा, मन, यानी कि आपका आहार अच्छा है, विहार अच्छा है और निद्रा, आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन आयुर्वेदा के अंदर दी जाती है। और दूसरा आयुर्वेद का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसका आयुर्वेद के अंदर हम कहते हैं कि टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन एंड टू क्योर द डिजीज्ड। तो अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो आपको क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार हो जाओ और उसके लिए, जो कि आयुर्वेद को समझा जाता है कि आप दादी नानी के नुस्खे हैं, आप आ जाओ, आप जड़ी बूटी का चूरन ले लो, लेप ले लो। आयुर्वेद इज़ नॉट लाइक दैट। आयुर्वेद सबसे पहले आपको जीना सिखाता है, आपको लाइफ कैसे, आपका दिनचर्या, आपको डे कैसे, ऋतुचर्या, सीजन के अकॉर्डिंग डाइट कैसी लेनी चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू योर इवन की जेंडर, मेल और फीमेल, क्योंकि बोथ आर वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी प्रोफाइल एंड एज वेल एज हार्मोन्स। तो जब आयुर्वेद की ये छोटी छोटी बातें हम समझ जाते हैं तो बीमार होने का तो मतलब नहीं है। और फिर भी बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग है तो बिकॉज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं एंड वी आर सो मच स्लेव्स टू आवर टेस्ट बड्स, वी आर क्वाइट सेंसिटिव, बीमार होते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो तो इतना बीमार कभी इंसान होता ही नहीं कि उसको जाके सर्जरी करानी पड़े या उसको अपना कोई ऑर्गन निकालना पड़े। तो इससे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी हेल्थ के बारे में आयुर्वेद और क्या दे सकता है कि आप, मतलब आपको वो इतना सब कुछ मिल गया कि आप बीमार ही ना हो। तो बिल्कुल सही जी। भाटिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है आयुर्वेदा को लेके और सस्टेनेबिलिटी हेल्थ केयर को लेके? I think everybody has given a lot of inputs and sustainable, what is sustainable? आजकल हम बहुत recently sustainability के बारे में बहुत चीज़ें सुन रहे हैं. Something which is very very good for the environment. Ayurveda definitely is one of the medical sciences which, if we just look at the kind of residual waste which ma'am also mentioned, when the medicines are produced in the factories, पहले तो सीधा जैसे इन्होंने बोला कि किचन से ही आप आयुर्वेदा को कंज्यूम कर सकते थे, फिर उसको थोड़ा पैलेटेबल बनाया गया, उसको थोड़ा
प्रोसेस किया गया कि सब लोगों को इजीली आप रख सकें, तो उसमें भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो प्रोसेसिंग यूज़ होती है फैक्ट्रीज़ में, जो उसका रेसिडुअल वेस्ट है, द बायोडिग्रेडेबिलिटी इज़ ऑल टेकन केयर एंड इट इज़ देयर. So when we compare that from the environment point of view, even to run what we call as the Ayurveda, manufacturing industry, which is making products and all of that, it is very, very aligned towards the environment. और ये काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं. That's from the environment point of view, where nowadays sustainability has kind of, become the buzzword, and corporates have a ESG mandate where they have to align. Now comes from the people's perspective, which everybody has already shared, that so something which is sustainable for the environment, something which is sustainable for the person or the people, nothing better than that, right? So it's a win-win situation when it comes to the environment and the people. When it is, I have been a patient, been undergone a lot of chronic diseases, and after being treated through another form of healthcare, I have finally, benefited from these therapies, and as a result, started something to promote this more and more. So I think that's my take on it. It's something which is for the people, for the environment, for the economy as well. So we were just talking to somebody that even from the cost perspective, it is very, very sustainable if we look at a patient going for a cancer treatment through Ayurveda vis-a-vis a patient going through any other healthcare. We don't want to get into specifics, but yes, that is highly, highly sustainable for the overall, kind of, ऐसा बोलते हैं ना कि एक situation आए जहाँ पर सबका ही फायदा हो. But I then also say that there are certain constraints this science has, and we all know about it. But if I just look at the data, so 1 out of every 3 Indians is having a lifestyle disorder. And when we say lifestyle disorder या non-communicable disease, आप उस word में ही देखिए क्या है, lifestyle disorder. मतलब आपका lifestyle order में नहीं है. And the only simple solution is put your lifestyle back into order. And for that, as all of them have said, that nothing better than Ayurveda, वो आपको science of life बताता है. So I think that's my take, yeah. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया भाटिया जी. और जैसे अभी मैम ने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आज मोर देन 80% बीमारियां अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही हैं. वो चाहे डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, मोटापा हो, इवन स्किन की डिजीज़, दीज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. हमने खुद पाली हुई है अपने आप ही, बाहर से नहीं आई, अपने आप ही. बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा ना, तो वो पहले दिन से पता लग जाएगा. जब जन्म लेते हैं हम लोग, भगवान, हमारी प्रकृति उसी टाइम डिसाइड कर देता है. हमारी जो मूल प्रकृति है बच्चे के पैदा होने पे ही मालूम हो जाती है. जो ये हमारे साथ आयुर्वेदा के एक्सपर्ट बैठे हैं, ये प्रकृति के बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे. बट धीरे धीरे जैसे इस दुनिया में आके हम लोग इन्वायरमेंट के संपर्क में, हमारे लाइफस्टाइल के उसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से हम बीमारियां घर करती हैं. आगे बढ़ते हैं. राम जी, एक चीज़ और बताइए. जैसे अभी आप पिछले कुछ सालों से ये हमारा जो सेक्टर था आयुर्वेदा का, काफ़ी, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइज आज भी नहीं है. सो अगर मैं आपके बारे में, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था आज से कुछ साल पहले कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म दें, तो क्या लगता है कि आपको इस मिशन में और इस विजन में उसका कितना योगदान रहा है? देखिए, सो इंडिया हैज़ अबाउट करीबन 4,50,000 डॉक्टर्स हैं, BMS ग्रेजुएट्स, जो बेसिकली गवर्नमेंट कहती है, एंड देयर आर रफली 200,000 या 2 लाख क्लिनिक्स हैं विच सर्व अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन पीपल.
तो अगर आप कंबाइंड बेसिस पे देखें तो these are the people who are serving it in one or another way, with me, without me, that's a different thing. जी. But any category is supposed to die if they do not interact with each other. So if you go and see at a, for example, lake, अगर उसमें पानी का मूवमेंट नहीं है तो पानी भी सड़ जाता है. बिल्कुल. It becomes, gets rotten and it has no. So the problem of Ayurveda, what I have seen, is basically the doctors working in silos. And since they work in silos, what happens is that people, so there is a different problem that we see with Ayurveda. लोगों को आयुर्वेद पे भरोसा है, डॉक्टर और दवाइयों पे नहीं है. ये एक बड़ा, मतलब हर जगह क्या होता है, बाकी जगह क्या होता है कि सब पैथी पे भरोसा है, लेकिन इन दो पे नहीं है. तो जो सबसे बड़ा जो ट्रबलसम जो फैक्ट रहा है वो रहा है ट्रस्ट का. सो पीपल लैक ट्रस्ट, नंबर वन. नंबर टू, जो उसके अराउंड देख रहे हैं, जो आपने भी कहा, अवनीत ने भी कहा, आपने भी कहा, व्हाट वी सेड कि एज पर WHO टुडे 70% डेथ्स आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स. सो देयर इज अ सिंपल थिंग. Wherever you are going to die today, you are less likely to adopt Ayurveda. But anything that is going to kill you tomorrow, you are more likely to go for Ayurveda. You should go for that. So I would recommend anything. And then your majority of problem, anything to do with metabolism, anything to do with your pain issues, you will go there. You are less, of course, whatever we say, you're less likely to go for oncology, you are less likely to go for surgeries and all these things. That's pretty much often. So now to going to a point where we are. So what we have been able to do is, if any category does not interact with each other, the knowledge is not going to be shared. And anywhere knowledge is not shared, how will you believe that one person would be able to learn everything, and as you said about Prakriti, and they are going to find solution for everything? So the most important thing is that there has to be, so even to have a peer reviewed article, you need to have a peer-to-peer learning. You need to have peer-to-peer discussions happening. And that's what, to some extent, that's what the first intention that we had, that we should be bringing peer-to-peer segment of our learning. Why? Because while for all other healthcare you have researches and everything, papers coming from all over the world, but for Ayurveda, it is only with those practitioners, those doctors who would do that. तो एवरी सिंगल डॉक्टर टू माई माइंड इज बेसिकली रिसर्चर. वो अगर वो शेयर नहीं करेगा, डॉक्टर दीप किसी से ना शेयर ना करे, सॉरी डॉक्टर बलदेव ना शेयर करे, कोई और ना शेयर करे, फनीश्री ना शेयर करे, और आपस में बात ही नहीं करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सिस्टम strong? Then the second question comes is, any category is not about 1%, 1% superstar. You need to have at least 30 to 40% people of that category making decent livelihood from that pathy to make it mainstream and trusted. Otherwise, it becomes a very, very challenging. So it is also equally important that we make sure that people across part of the pathy are making their livelihood from there. Then only it is going to become sustainable. Otherwise, someone is going to do something else. What will they do? डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही कहा राम जी, क्योंकि जब तक हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, अगर वही अपनी नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और यही काम अगर हमारे जो ऋषि मुनि थे, या जो आयुर्वेदा के जो जनक कह लो आप, सुश्रुत संहिता जैसे हमारे आयुर्वेद की जो महान पुस्तक है, सुश्रुत ऋषि जी, चरक ऋषि जी, अगर वो लोग उस टाइम ना लिखते किताबें, तो आज मेरे ख्याल से जो BMS स्टूडेंट या आगे पढ़ते हैं वो भी ना होता. सो मेरे ख्याल से तो ये जितने भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एक्सपर्टाइज किसी डॉक्टर की है, तो वो आगे अपने कोलीग्स को शेयर करें, तभी ये आगे बढ़ पाएगा. एंड इट्स सभी को इसमें इनिशिएट लेने होंगे. सो बिल्कुल, मैं आपको आपने बताया ना कि ट्रस्ट के लिए बताना पड़ता है कैसे. सो मैं कहीं पे एक टेक कॉन्फ्रेंस था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और मैं वहाँ पे स्पीकर था. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही आया कि आखिर हार्ड एविडेंसेस कहाँ हैं, वेयर आर द, एंड आई रीड अ लॉट ऑफ लांसेट एंड एवरीथिंग, तो देयर इज ट्रूथ कि वहाँ पर हार्ड एविडेंसेस नहीं है, बट सॉफ्ट एविडेंसेस बहुत सारे हैं. एंड देन माई पॉइंट इज दैट आयुर्वेदा हैज जनरली बीन डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ लाइव एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल.
So if we know कि एक particular herb है, उसका अगर दूध आंख में चला जाएगा तो आप अंधे हो जाओगे, किसी न किसी के ऊपर उसका experiment हुआ है. बिल्कुल. तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आपको पता है? कितने लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ समस्या क्या है जो डेली सुबह लोग महसूस करते हैं? वो है कॉन्स्टिपेशन. And then I had something and I spoke to a professor and then I said, if consider there is something that works with you, if you take in the night, works you in the morning, that means it works. It is soft evidence, it is hard evidence you have to create. I mean, if someone has to go and write a paper. And then I also brought out and then started talking about certain herbs, what they can do, take, what there are, of what product they can take, what product they cannot take. There is a different problem to that. The second problem is to adoption is also, is it palatable or not? Because a lot of people, they would want to take, they are not able to take because of many reasons. World has changed. There was a word, drug. Drug is today an abused word. At some point, it was a celebrated word. Alternative was used for example, for what you call modern medicine. Today, it is a mainstream. So things change from mainstream to alternative medicine, and it has also started coming back. The second thing is that there is also a likelihood that anyone born between 60s to 80s are less likely to adopt Ayurveda. This is also true. Why? Because most people were dying from communicable diseases in this country in 60s, 70s, polio, chickenpox, whatnot. People had to save their lives. Then when your livelihood starts increasing, you get into the problem of lifestyle problem. And then you have got lifestyle problem, you are going to use Ayurveda and basically any sort of those products. It happened in China through TCM, it happened in Kampo, in Japan, you had many other countries happening around that part. So there are even a lot of evidences coming up. There are a lot of peer-to-peer things coming up, but it can be better. Tech adoption is happening. People are talking about it. And there are a lot of good things happening around the country. And even Government of India, Ayush Department has dedicatedly, उन्होंने काफ़ी पिछले 3-4 साल से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए and more than 600 हब्स के ऊपर काफ़ी एडवांस लेवल की एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बेस्ड स्टडी हुई. And even being a manufacturer, we are into this industry since last 16 year. हम लोगों ने अभी last year ऑस्ट्रेलिया में 15 प्रोडक्ट लॉन्च किए. And we are the first company जिनको लीगल अप्रूवल ऑस्ट्रेलिया में मिली. हालांकि हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बेस क्या था कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए स्टडी के, जो एविडेंस होने चाहिए, एविडेंस कहाँ से मानते हैं? एविडेंस तो आपके जो ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं या जो हमारे ग्रंथों में पहले हैं. सिर्फ एक कुछ ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट करने से एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुल नहीं होते. कितने ऐसे, मैं किसी पैथी का यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर हम सिर्फ ये सोचें कि 10, 20, 50 ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट करने से उसकी एफिकेसी या उसकी सेफ्टी मेजर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. कितने ऐसे मेडिसिन अभी भी होंगी जो विड्रॉ 10-10 साल के बाद भी हुई हैं, लेकिन आयुर्वेद की एक भी मेडिसिन आप ऐसी देख लो क्लासिकल में जो विड्रॉ हुई हो. और कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि एक्चुअल में आयुर्वेद है भी क्या. आयुर्वेद में बेसिकली 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले शुद्धि, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन हम बोलते हैं. पंचकर्मा इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, एक आयुर्वेदा की ही ब्रांच है. जब भी कभी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास कोई पेशेंट जाता है, सबसे पहले वो प्रैक्टिशनर उसकी पल्स डायग्नोज करके उसकी शुद्धि करेगा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करेगा. उसके बाद स्टेप आएगा मेडिकेशन का. मेडिकेशन में भी वो सबसे पहले हर्बो मिनरल्स देंगे या हर्ब्स के बेस पे देंगे. और थर्ड स्टेप जहां पे लगेगा कि क्रोनिक ट्रीटमेंट है या क्रोनिक बीमारी है, देन वो यूज करेंगे क्लासिकल मेडिसिन. तो एक प्रॉपर पूरा स्टेप है. सो डॉक्टर बलदीप, मैं आपसे थोड़ा इसी के बारे में जानना चाहूंगा, सो दैट हमारी ऑडियंस अगर बिफोर दैट आई वुड लाइक टू, बिकॉज राम जी का थ्रेड था कि व्हाट इज, एंड आपने भी बोला कि व्हाट आर दी मैक्रो फैक्टर्स. सी वी रिक्वायर सर्टेन थिंग्स टू हैपन फ्रॉम टॉप डाउन, राइट? द गवर्नमेंट, एज यू राइटली सेड, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. पिछले 3-4 साल में काफी इनिशिएटिव्स हुए हैं. सो आई थिंक पूरी मिनिस्ट्री बनी, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च बने. अब WHO ने फर्स्ट
ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर खोला है आपका जामनगर में. जामनगर में, गुजरात. Tata Memorial has come into cancer research and cancer hospital. Apollo has come into Ayurveda. So there are a lot of macro factors, and I think the most important macro factor which will lead to a very good adoption of this, medical field is the insurance as well. So now Ayush treatments are part of your health insurance policy. The sad part is many of the people don't know about it. So there are around 15 crore Indians who hold policies, insurance policies, and we deal with a lot of tier 1 kind of companies, corporates, जिनके group insurances हैं, but उनके लाखों करोड़ों जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसी को ये पता भी नहीं है कि फॉर सर्टेन डिजीजेज जस्ट लाइक एलोपैथी दे कैन गो टू फर्स्ट. उनको ये पता नहीं कि उनकी पॉलिसी अलाउ करती है, कितना वो है, फिर अगर करती है तो कहाँ जाना है. सो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स ऑफ things which have started now moving, now started happening. So I think where we are talking a lot about what the science is, definitely we all need to understand that. But what ये science 5000 साल से है, and it has been there. Why the adoption has not been there? I think that's something that how can, if we want to finally benefit the environment, I think it needs to be adopted more and more. And the way why the other field is adopted, because it has been passed through so many channels. It is the only thing which has been told to us कि insurance है तो इधर जाइए. So that's where I think that's more important than just knowing what Ayurveda is. true. And even क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पॉकेट की बात करें तो आज जिनके पास इंश्योरेंस है और वो अगर किसी भी आइदर वो एलोपैथी से लें या कहीं भी जाएं, तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए चैलेंज तो है ही है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो डॉक्टर बलदीप, मैं एक क्वेश्चन आपसे लूँगा कि जैसे आप लोग पिछले 14 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, तो क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे आप लोगों को आए इसमें? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो चैलेंजेस हमें रहते हैं, एक तो हर्ब प्रिक्योरमेंट का रहता है कि हर्ब जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की या अवेलेबिलिटी उसकी आइदर हम अगर ऑर्गेनिक में ढूंढते हैं या पेस्टिसाइड फ्री है, या कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो अवेलेबल भी नहीं है या एक्सटिंग्विश हो चुकी हैं मार्केट से, तो उनको दोबारा से उसमें लाना, उनकी क्रॉप करना, तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, ताकि वो जो इको टूरिज़म या इको सिस्टम को मेंटेन करना, वो हर्ब किसी पर्पस से हमारी कंट्री के एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती थी और वो अब ख़त्म हो चुकी है ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल फैक्टर. स्टिल दैट इज़ नीडेड फॉर ट्रीटमेंट. देयर आर सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट हर्ब्स विच वर्क लाइक दैट. एंड सेकेंड चैलेंज रहता है मार्केट के अंदर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन. आयुर्वेदा की मेडिसिन जो हैं वो जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत पुअर है. पुअर इन द सेंस कि देयर आर नॉर्म्स, बट नॉर्म्स तो इंडिया में हर एक चीज़ के लिए बनाए गए हैं, बट उनको फॉलो करना या उनको अप्लाई करना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट. तो ट्रीटमेंट के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये बहुत रहता है, क्योंकि एज ए प्रैक्टिशनर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, द फर्स्ट चैलेंज आई हैव फेस्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन. Though I was following the Ayurvedic textbooks, which are taught to us 6 years in the colleges, when I started practicing, I used to give my patients that yoga, that Ayurvedic medicines, but I can't get that results. So मुझे लगा there is something कि कुछ ना कुछ तो है. When I started making my own medicines, herbs ला के, even simple decoctions, तो quality ensure करना आयुर्वेद की वो भी बहुत important है. ताकि अब लोग कहते हैं आयुर्वेद खाते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बसम खाते हैं उससे किडनी खराब हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि आयुर्वेद गलत है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि जो मेडिसिन दी गई है उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब है, या उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं किया गया, या उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, अगर आपको आयुर्वेद के अंदर भी शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि आयुर्वेद के अंदर भी डोसेज सिस्टम होता है. अगर आप डिकॉक्शन लेते हो तो उसका भी डोसेज है, या आप पाउडर लेते हो या आप एक्सट्रैक्ट लेते हो तो उसका भी डोसेज रहता है, और प्लस ये भी रहता है कि कितने टाइम में आपने रिपीटिशन लेना है या उसका लेने का टाइम क्या है. इवन आयुर्वेद में तो ये भी है कि आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, आपको खाने के बीच में लेना है या खाने के बाद में लेना है.
तो ये सब चैलेंजेस जो हैं मैन्युफैक्चरर को भी आते हैं, डॉक्टर्स को भी आते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी, और किसी पेशेंट के अगर ट्रीटमेंट में अगर आयुर्वेद से भी लेता है तो 10,000 की वो मेडिसिन खाता है और फिर भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लेने के बाद वही रिजल्ट उसको 2,000 की मेडिसिन में भी आता है, तो उससे हमारा जो लॉस है वो बहुत कम होता है। थैंक यू। पानीश्री जी, एक मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी क्योंकि टाइम की भी कमी है, आपको क्या लगता है कि क्या इनिशिएटिव, अगर हम पॉलिसी मेकर से बात करें या गवर्नमेंट से बात करें, क्योंकि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स आप लोग करते हो अपने सेंटर पे, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इन माई थॉट्स लाइक इन्होंने बोला टॉप डाउन अप्रोच अच्छा है, लेकिन मेरे उद्देश्य में अगर हम अवेयरनेस लाएं, देखिए अभी जो भी पीछे बैठे हुए हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हेल्थ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हेल्थ कैसे मेंटेन करना है। सबको हेल्थ के बारे में कब सोचते हैं, जब वो सिक होते हैं। तो व्हाट आई फील इज द मेजर रोड ब्लॉक इज अबाउट अवेयरनेस। सो व्हेन वी क्रिएट अवेयरनेस at all levels, you know, we conduct lot of free medical camps at our center, near our centers, and Ayurveda believes in creating a healthy community also. It is not about treating a patient, it is about keeping everyone healthy around you. So whenever we create, we open a center, Panchakarma center, we create lot of community, activities. We give awareness to the people, to the nearby colleges, schools, small kids, telling that this is your health and this is how you have to keep your health. So that is a major thing which is lacking. As per Ayurveda is concerned, there is no awareness about what is health, what is sickness. कोई भी अगर सिक होता है तो सोचता है अपने हेल्थ के बारे में, ऐसा नहीं कि पूरा हेल्दी रहो तो क्या होगा। तो nobody knows the benefits of being healthy also. They only know what will happen to me if I become sick, they know. But they don't know what will happen to me if I stay healthy. So this awareness, this basic awareness, when it is brought across the communities, it will create demand for Ayurveda. Then obviously when demand is there, supply can be created. ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हमारी डिस्कशन रही, और ये कह लो कि अगर हम हेल्थ केयर में सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आयुर्वेद तो ये कह लो कि एक नेचर से ही शुरू होता है, और जहाँ नेचर आ जाता है उससे ऊपर तो कोई बात हो नहीं सकती। और अगर जाते जाते अगर मैं सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजर को कहूँगा मुझे 5 मिनट और दीजिए, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात होती है तो हमारी ऑडियंस बैठी हुई, कोई भी 2-3 क्वेश्चन अगर आप चाहें हमारे एक्सपर्ट से पूछना, कोई भी प्लीज़, आप सभी में से कोई भी क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कशन किया आयुर्वेद को लेके, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे या कोई एडवाइस आपकी तरफ से हो, या प्लीज़। Sir, in India, many people are shifting from Ayurvedic methods to modern day science and to allopathy basically. And many foreign countries where developed modern day healthcare was made, Ayurvedic Indian methods are like progressing because of that. Like, what are your views on that? In India, basically, Ayurveda is getting less popular, and allopathy, people are obviously considering allopathy over modern day science over Ayurvedic. But in foreign countries, people are adopting Ayurvedic more. Like, they have started adopting Ayurvedic more than their own modern day science. And scientists and many other professionals are siding with that. So what are your views on that? Okay, I understand. So डॉक्टर बलदीप, जैसे आप अभी बाहर काम करते हैं पिछले 10 साल से, कैन यू रिप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहीं के आप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी ट्रैवल करते हैं, तो प्लीज़ बेटर रिप्लाई आप कर पाएंगे इनको। जी, जो इनका क्वेश्चन है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो आयुर्वेद को अपना रहे हैं और हमारी कंट्री का जो रुझान है वो दूसरे एलोपैथी की तरफ है, तो इसका सबसे बड़ा इसका आंसर जो दिया जाता है, जो आप हमारे साथ बैठे हैं पैनलिस्ट, इन्होंने दिया कि अवेयरनेस, सबसे पहले आयुर्वेद की अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो इंडिया में मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस शुरू से दी नहीं जाती। सेकेंड थिंग इज़ अवेलेबिलिटी। जब आपके आसपास 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे और एक एलोपैथिक डॉक्टर होगा, और जब आप बीमार होंगे तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच आयुर्वेद की तरफ जाएगी। लेकिन जब आपके पास 10 एलोपैथिक डॉक्टर बैठे हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा है, तो आप एलोपैथी पे जाएंगे। अवेयरनेस की कमी से और अवेलेबिलिटी की कमी से और पॉलिसीज़ की कमी से पर्सन्स को, लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये जिस पैथी जो चीज़ ज़्यादा दिखती है, ऑब्वियस इंसान उसी को खरीदता है।
मार्केट में जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, वो अवेलेबल होती है, आप उसी की तरफ जाओगे। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को प्रमोट करती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है, स्कूलों में सिखाती है, अगर वो एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में टेक्स्ट बुक्स में सिखा सकते हैं, तो क्या वो बेसिक लाइफ की चीज़ें, हर्ब्स के बारे में या आयुर्वेद के बारे में क्या किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता? हम अगर अक्सर- बाहर की कंट्री में, जर्मनी के अंदर ये एक करिकुलम में लिया गया, यूएस में भी करिकुलम में लिया गया आयुर्वेद, बिकॉज दीज पीपल प्रेफर हेल्थ। उनको पता है कि हेल्थ का जो बर्डन है, हेल्थ का जो बजट होता है वो बहुत हाई है, दे वॉन्ट टू रिड्यूस इट, दैट्स वाई दे आर अडॉप्टिंग टू द नेचुरल थिंग्स। वो आयुर्वेद को इसलिए अडॉप्ट करें, उनको पता है कि ये प्रिवेंटिव है। अगर आप प्रिवेंशन के ऊपर काम करोगे तो आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं रहती, और आपकी इकोनॉमी के ऊपर बजट भी कम होता है, और आपकी सस्टेनेबिलिटी, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है कि वेस्ट निकलता है या आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर केमिकल्स निकलते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड ऑक्यूपाई होती है, तो वो भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर ये नहीं है कि आयुर्वेद पॉपुलर नहीं है या आयुर्वेद काम नहीं करता या आयुर्वेद पैथी में दम नहीं है। अगर आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता तो आयुर्वेद फॉरेन में जाके, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम फॉरेन में जाके हमें आयुर्वेदा के बेसिस पे वीज़ा मिलता है डायरेक्ट, वी डोंट नीड टू गिव एनी एग्जाम्स देयर, वी कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेदा इज़ ए होलिस्टिक साइंस विच वर्क्स ऑन ऑल द पैरामीटर्स। एंड वो भी मानते हैं कि अगर एक प्रैक्टिशनर अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं आता, और इसको प्रिवेंटिव हेल्थ की तरह लिया जाता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, एंड प्लस जो अवेलेबिलिटी भी है वो भी एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, वो चाहे एफिशिएंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, और वो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, तीनों का एफिशिएंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही रीज़न है। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सो थैंक यू वेरी मच सभी पैनलिस्ट का, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आयुर्वेद हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी के लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है। और मैं ऑर्गेनाइज़र का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अपनी ये पूरा आयुर्वेद के बारे में चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।